Welcome, sir, to my first podcast, and I would like to congratulate you for being appointed as G20 representative, and also first my government campus ambassador. Thank you, Rajneesh ji. It's my privilege to have been invited by you in this podcast. And the topic that you have chosen, the dispute resolution, that is very close to my heart, and I am very happy to be part of this. Thank you, sir. So let's start this topic. And first, will you explain what dispute means to you? See, it is very clear that in a society people have opinions, people have their perspectives, people have their views, and Plato has beautifully mentioned this, that an ideal society is an utopia. And since it is an utopia, therefore we cannot define a society without conflicts. A society will have disagreements, a society will have conflict of opinions, and those conflict of opinions becomes disputes. In a one line, I'll say disputes are the disagreements between the parties. And the disagreements can be on their views, can be on the perspectives, they can be on the opinions, they can be on the what I think and what you think. This is according to me the dispute is. So, according to you, when it starts dispute? I mean, if I ask you, what are the reasons for that? See, there are two kinds of disputes. One dispute is that goes internally within you. That is an internal dispute. And one dispute is that is external. That happens because of external stimuli. That happens because of the people in the society. That happens because of the disagreements. Now you ask me, what is the starting point of a dispute? Yes. A starting point of the dispute is when you bring your idea in public, or when you bring your perspective between two people. As soon as that comes in the public domain, then there are chances it will be in dispute. See, the Constitution of India provides that you have right to dissent. That means you have right to criticize also. You have right to have different opinion also. And from that, you exercise your right to have different opinion. And different opinions gives rise to conflicts. I don't consider that conflicts are always negative. They are also positive. And this is the point from where a dispute arises. That is from the public, when your idea comes in the public. Okay, so as you said, dispute happens between two people. Okay, so I would like to know, is there different types of people? Why people have different opinions, and who are those people who create these type of issues? Whether they know the truth, but still the dispute happens between those two people. This is a question that also requires a psychological perspective to be understood. Why people have different opinions? Yes. Because they think. They think positively or they think negatively. This is why they have different opinions. Example of positive thinking is, if you have an idea, then a person will add on in your idea because of his positive mindset. They will do value addition in your idea. But a person with negative thinking, he will always try to criticize you. See, there are four kinds of people. One, those
who are with you, who are in company with you, who are in association with you, but वो आपसे जलेंगे। Correct. क्यों जलेंगे? क्योंकि आप उन्हीं के साथ हैं, उसी लेवल पे हैं, लेकिन आपने कुछ ज्यादा गेन करा है अपनी मेहनत के साथ। कुछ लोग वो होते हैं जो आपको वापस खींचने का प्रयास करते हैं, वापस नीचे लाने का प्रयास करते हैं कि भाई आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। एक ग्रुपिज्म की भावना होती है उनमें। आप भी उस ग्रुप का पार्ट होते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत की बदौलत आगे निकलते हैं तो वो आपसे चिढ़ते हैं। एक हेट्रेड की भावना होती है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि आपको या तो वो क्रिटिसाइज करेंगे या आपको वो वापस खींचने का प्रयास करेंगे। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, आपको वो पब्लिक में बदनाम करेंगे झूठी चीजों के माध्यम से। आप कुछ काम कर रहे हैं और आपकी ही एसोसिएशन में, आपकी ही कंपनी में, आपके ही उस सोशल रिलेशनशिप में आपके प्रति एक घृणा का भाव वो पैदा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सामने से कुछ नहीं कह सकता। और कुछ लोग वो होते हैं जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं। Yes. Agree. यहां पे आपको ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, और यहां पे आपको अब क्या होता है, एक व्यक्ति का दिमाग कैसे चलता है कि वो इन सब चीजों के माध्यम से वो एक क्या कहते हैं, डिमोटिवेट हो जाता है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर वो पब्लिक, वो जनता ऐसा कर रही है तो आप समझ लीजिए कि आप उनके आगे हैं। आपके पीछे लोग बुराई क्यों करेंगे? क्योंकि आप उनके आगे हैं, इसीलिए वो आपकी बुराई करेंगे। So like sometimes it happens कि जो आपसे सबसे क्लोज हैं, they used to do the same thing. So उस समय पे क्या होता है कि people get confused, like वो उनके अगेंस्ट जाएं या ना जाएं। तो उस टाइम पे वो बस शांत रहते हैं, which sometimes become a very big problem for him. So in that situation, what that person do? See, आपके परिवार या आपका कोई भी सबसे ज्यादा क्लोज कौन होता है? आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त कई बार बहुत करीब होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी भी कारणवश वो लोग आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। आपको पता नहीं होगा भाई हुआ क्या। Yes. एक प्रकार से वो एक इमोशनली आपको उसी लेवल पर लाने का प्रयास करेंगे जहां पे वो चाहते हैं कि आप आए और उनके मुताबिक कार्य करें। अब यहां पे 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर वो व्यक्ति आपको इमोशनली कह रहा है, इमोशनली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो एक तो आपका है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है हर चीज के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर एक्ट्स, ऑफ योर ओमिशंस, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू शुड डू, what you must not do, because lastly it is you who will do the things, and the society will come to you, one to criticize you if you did not succeed, and one to ask you everything if you succeeded. Correct. अगर आप सफलता को ग्रहण कर लेते हैं तो जो आपको जानता भी नहीं वो भी आपको जानने लगेगा और कहेगा अरे साहब मैं तो आपसे मिला था, आपको याद नहीं। और जो आपको बहुत करीबी है, जो आपको हमेशा से आपको एक प्रकार से जुड़ा है, आप अगर सक्सीड नहीं होते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं वही पहला व्यक्ति होगा जो कहेगा अरे आपसे तो हो ही नहीं पाया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, इस रास्ते से करना चाहिए था। यानी आपको वो रास्ते भी बताने लगेंगे कि अरे तुमको ये नहीं करना था, तुमको ये करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बताया था, तुम उसके पास नहीं गए, तुम उससे नहीं मिले, तुम उससे ये करते वो करते। उस समय आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। So
उस टाइम पे क्या होता है कि आप इंटरनल भी लड़ रहे हो। क्या होता है कि जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आपको आइडियाज देने लगते हैं, ठीक है, एंड आल्सो एट द सेम टाइम यू आर बैटलिंग दोज थिंग्स फ्रॉम योर इनसाइड, और जब एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि किसको सच माने, इधर आई गो बाय माई ऑन डायरेक्शन और आइदर बाय द डायरेक्शन विच ऑल आर गिविंग टू मी, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा चूज करे रास्ता, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस समय आपको कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने कहीं पे एक बात कही थी कि अगर मैं कभी भी एंजाइटी में होता हूं या गुस्से में होता हूं या बहुत ज्यादा खुशी में होता हूं, मैं कोई भी एक्शन नहीं लेता। जब मैं शांत होता हूं तब मैं एक्शंस लेता हूं। तो जब आप ऐसी कंफ्यूजन के वाले स्टेज पे हो, यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग। दैट इज द सोल्यूशन। So we can see dispute in political things as well. So how you are seeing yourself and in a political dispute? See, at lighter note, politics is a source of disputes, and politics is a very interesting matter, subject matter, and disputes are part of it, inherent to it. And there is no politics without disputes. So we must enjoy. So, okay, so I just wanted to know. Actually, I have listened. I have get the answer from anyone about the definition of politics. I wanted to know from your side how you see and how you define politics simply. What is politics? See, politics is not a job. Politics is not a profession. Politics is a service. Politics is a service to mankind. I don't take into consideration the current status of politics. But why do you go in politics today? Why? You go in politics to get fame. You go in politics to earn. You go in politics to be the part of the lawmaking. और आप यूं कह लीजिए कि आप पॉलिटिक्स में जाते हैं अपना रॉब जमाने के लिए। लेकिन अगर हम समझे कि राजनीति है क्या, राजनीति एक प्रकार से राज्य को चलाने की नीतियां हैं। राज्य को किस प्रकार से चलाना है, राज्य के लोगों की भलाई किस प्रकार से करनी है, राज्य के लोगों के लिए क्या अच्छा है, राज्य के लोगों के लिए क्या बुरा है, वो राजनीति है। आज की राजनीति क्या है कि कौन सत्ता में आएगा, हाँ वो भी एक हिस्सा है राजनीति का, लेकिन वो राजनीति नहीं होती, वो कूटनीति होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राजनीति एंड कूटनीति। कूटनीति के माध्यम से आप राज्य की नीति बनाते हैं। आपको अगर सत्ता हासिल करनी है तो आप कूटनैतिक तरीके से सत्ता हासिल करें। महाभारत में राजनीति की वजह से डिस्प्यूट अराइज हुए थे और वहां पे जो कूटनीति अपनाई वो कृष्ण ने अपनाई। कृष्ण ने राजनीति नहीं अपनाई, उन्होंने कूटनीति अपनाई, उन्होंने डिप्लोमेसी अपनाई। तो डिप्लोमेसी के माध्यम से आप पॉलिटिक्स के अंदर, और डिप्लोमेसी के माध्यम से, डिप्लोमेसी डजंट मीन कि फॉरेन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी एक इंटरनल लेवल पे भी होती है। तो कूटनीति और राजनीति में अंतर है, और राजनीति का जो मैंने मतलब बताया एक आइडियल मतलब वो है, आज की परिभाषा तो बदलती रहती है। So you talked about politics. So how you are seeing politics nowadays? If I ask you about Narendra Modi and
all the different parties, how you are seeing about Indian politics right now? देखिए, भारत में राजनीति का रूप बदल चुका है। 1947 के समय भारत देश के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे, इंटरनेशनली प्रोटेक्शन नहीं थी, और हम उस समय सोवरेन बनने की स्टेज में थे। उस समय की सरकार ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस समय की जरूरत थी। हम एक देश जो गुलामी की जंजीरों से अलग हुए थे, उस समय आवश्यकता थी कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक अपनी पोजीशन स्थापित करें। हमें सब पूरी दुनिया का साथ लेना था। लोग ये कहते हैं कि मेरा विचार जो है कि धारा 370 जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि पंडित नेहरू यूनाइटेड नेशंस चले गए थे। आप जरा ये बताएं कि उस समय देश हमारा आजाद हुआ था, उस समय देश हमारा उतना स्ट्रांग नहीं था। अगर हम यूएन चले जाते हैं तो क्या हमने गुनाह कर दिया? हमने गुनाह नहीं करा। हमने गुनाह इसलिए नहीं करा क्योंकि उस समय जो भारत की हालत थी, जो भारत की स्थिति थी, उसमें हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए थी। एक हमको अंतरराष्ट्रीय छवि भी तो सुधारनी है, अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारनी है। और आज की अगर हम स्थिति देखें तो आज पॉलिटिक्स पर्सोनिफाई हो गई। एक व्यक्ति के नाम से राजनीति जानी जा रही है। 2014 का चुनाव देख लें, 2019 का चुनाव देख लें, एक व्यक्ति के नाम से राजनीति जानी जा रही है। और इस पे मुझे लगता है कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सत्य है। 2014 में क्या किया गया, 2019 में क्या किया गया, कौन से नारे दिए गए? दीजिए आप नारे दीजिए, यही तो आपका अधिकार है नारे देना। लेकिन पॉलिटिक्स आज पर्सोनिफाई हो गई है, व्यक्ति के नाम से जानी जा रही है, वो सही नहीं है। आपको राजनीति करनी है तो आप पॉलिसीज पे करें, राजनीति करनी है तो आप देश कैसे विकास करे उस पे करें, राजनीति करनी है तो आप देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसे सुधारें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके देश की बुराई करके आप ऐसा करें, वो भी सही। सो यू जस्ट सेड कि हमेशा देश की भलाई के लिए पॉलिटिक्स करनी चाहिए। दिस इज ट्रूथ, दिस इज द राइट थिंग, बट व्हाई ऑल अदर पार्टीज आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट? They are always speaking about things which is not good for the India. They are blaming our prime minister. They are blaming our policies. But I guess this is not a wrong thing. But why they are doing all these things? These things come into politics in a good way or in a bad way. देखिए, ऑपोजिशन हमेशा क्रिटिसाइज करेगा, और ऑपोजिशन हमेशा जब क्रिटिसाइज करेगा तो ऑपोजिशन का काम ही क्रिटिसाइज करना है। आप समझे नहीं समझे? तो ऑपोजिशन विल ऑलवेज क्रिटिसाइज, और यही तो ब्यूटी है राजनीति की। तो इस पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और चूंकि मैं कानून के क्षेत्र से आता हूं तो इस पे मैं थोड़ा बताऊंगा। देखिए, भारत में संसद ही है, पार्लियामेंट ही है जो कानून बनाती है, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में ये भारत का संविधान है, यही है सबसे बड़ा कानून। और इसी संविधान का आर्टिकल 39A सरकार को ये ड्यूटी देता है कि आपकी जिम्मेवारी होगी कि आप फ्री लीगल एड देश के नागरिकों को प्रोवाइड कराएंगे। Article 39A provides free legal aid and justice, and it mandates the state to frame laws. उसके अंतर्गत हमने 1996 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट लाया to resolve the international commercial disputes, to resolve the domestic disputes, for the implementation of foreign awards.
हम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लेके आए, हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का है, लेकिन उसके अंदर जो प्रावधान है आर्टिकल सेक्शन 89, वो भी हमें एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की ओर लेके जाता है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करें, और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक माध्यम है। भारत में 2 प्रकार के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है जो कि आप कोर्ट के माध्यम से करते हैं, एक प्रोसेस है जो आप मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन के माध्यम से करते हैं। तो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन ये माध्यम है जो आप आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट होता है, और इसमें आप जल्दी रिजॉल्व करते हैं, लेस कॉस्टली होता है, मोर इफेक्टिव होता है, पार्टी सेंट्रिक होता है। और मैं आपके माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप लोग कोर्ट में ना जाकर सबसे पहले प्रयास करें कि आप लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, आप लोग अपने आप से वो डिस्प्यूट सुलझाएंगे, आप लोग किसी की मदद से वो डिस्प्यूट सुलझाएंगे। लेकिन सबसे पहला तरीका है कि आप लोग जो भी डिस्प्यूट पार्टी हैं वो दोनों बैठकर के डिस्प्यूट सुलझाएं, शांति के साथ, सौहार्द के साथ, एकदम समय देकर के। जी। Okay, so what is the historical perspective of dispute resolution? If I talk about Mahabharata, so how you are seeing dispute in Mahabharata? See, एक बहुत अच्छी कविता रश्मि रथी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने वो कविता लिखी है। उसमें उन्होंने इस बात का बहुत ही गहराई से वर्णन किया है कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे तो उन्होंने वहां जाके कहा था, और मैं मेंशन करता हूं कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो, केवल 4 ग्राम रखो, अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जल पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। फिर हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। फिर हरि ने क्या कहा कि ले अब मैं जाता हूं, विध्वंस युद्ध होगा। यानी इससे हम क्या सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को अपनाया था। वो ऑपोजिट पार्टी के पास गए थे कि भाई तुम बातचीत से सुलझा सकते हो, इस महाभारत जैसे विध्वंस युद्ध को रोक सकते हो, लेकिन नहीं रोका गया क्योंकि दुर्योधन नहीं माना। ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि भारत में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, एडीआर मैकेनिज्म्स अभी नहीं आए, अंग्रेजों के समय नहीं आए, ये हमारे में तो महाभारत रामायण के काल से थे। ये हमारे, आप देखें ना कि पंचायत सिस्टम क्या है, पंचायत सिस्टम भी एडीआर मैकेनिज्म ही है एक प्रकार से। तो ये एक प्रकार से हमारी जड़ों में है। आप देखें तो 2 दोस्तों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तीसरा दोस्त आता है, अरे भाई सुलझा लो ना, आपस में बातचीत करें। पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, क्या कहता है, अरे भाई बैठ के सुलझाओ। दुकानदार और कंज्यूमर में डिस्प्यूट होता है तो वो नेगोशिएट करते हैं। एक ठेले वाले में और एक खरीदने वाले में डिस्प्यूट होता है, वो नेगोशिएट करते हैं। अरे भाई तुम 50 रुपए में नहीं दे रहे हो, चलो 45 में कर लो, 30 में कर लो, चलो 43 में कर लो। तो ये हमारे माइंड्स में है। और अभी रिसेंटली बात हो रही है कि मीडिएशन बिल आना चाहिए। तो अब लगता है कि एडीआर और डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस एक बहुत बड़ी आगे एक फोरम बनेंगे सभी के लिए, और एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल कोर्स ये बन के आएंगे ताकि हमारे डिस्प्यूट्स कम हो और जो हमारे पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो भी कम होगी। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, जी, ऐसी कौन सी लॉ अब आ सकती हैं टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट? मैंने आपको बताया मीडिएशन बिल अंडर प्रोसेस है। ये कुछ ही साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने एक बिल बनाया था, बिल ड्राफ्ट करा था, मीडिएशन बिल 2021।
वो रिकमेंडेशंस स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की भेजी गई थी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने उस पर अपने कुछ ऑब्जेक्शंस और कुछ सजेशंस दिए हैं और उसके बाद वो भी प्रोसेस में है। जल्दी वो बिल आएगा और हम इसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे। लेकिन कानून हो ना हो, कानून से बात नहीं बनती है। कानून इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एडीआर मैकेनिज्म्स हैं वो पार्टी सेंट्रिक हैं। कानून तो एक रेगुलराइज करने के लिए है, एक उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन असल में अगर हमें डिस्प्यूट रिजॉल्व करने हैं तो हमें पार्टीज को समझना होगा। पार्टीज को कैसे रिजॉल्व करना है डिस्प्यूट, पार्टी की इंटेंशन है या नहीं है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कानून तो बहुत है, कानून बहुत है, लेकिन इंटेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Okay, so nice to talk to you. थैंक यू सर, इट वॉज नाइस टू मीट यू एंड आई होप इसके माध्यम से लोग समझेंगे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कोर्ट में क्यों नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग कोर्ट में जाते हैं, आप ही लोग परेशान होते हैं, लंबी डेट्स लगती हैं। क्यों नहीं आप लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं? ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा और जो केसेस के कोर्ट्स के ऊपर बर्डन है केसेस का वो भी कम होगा। तो जो हमारा एक्सेस टू जस्टिस का एक प्रिंसिपल है वो हमारा सॉल्व होगा, वो हम अचीव कर पाएंगे जल्दी। Okay, so thank you थैंक यू वेरी again, मच। and hope we will do podcast on next series. थैंक यू, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस।